Agriculture. India is mainly an agriculture country. As you are aware, two-thirds of Indian population working in villages, and there the men work only for the farming. Small industries also related to agriculture is situated in the villages. Agriculture is an important base of Indian economy, society and culture. Indian economy in sense, two-thirds of population is employed in this, and the basic substantial systems and our requirement is fulfilled by the agricultures. Society is involved in agriculture, farming, and the work related to farming, and also the culture. Cultural activities take place in the villages are also related to the agricultures. Indian economy has got important role, and supporting works to the agriculture like dairies, animal husbandries, etc. related are also take place in villages. Now, agriculture is an important base of Indian economy, society, cultures. As we are aware, agriculture provides the food grains to the people. It provides raw material to agro-based industries, which are situated generally in a small scale near villages also. Food grains to the pupils, and one more thing, most important, the plantations also there, and tea, coffee, spices are some of the agricultural products that are exported. Exporting from India, our tea, coffee and spices are very important. That too agriculture product. Type of farming. Now if you see the type of farming according to physical environment, farming depends upon the environment, climate and characteristics of soils. Farming varies in the India. Now, substances to commercial type. Formation is also depends upon the soils. The soils like black soils is preferable for the cotton seeds. And climate. Some crops are require more rains and some are lesser. At present, in different part of the India, different type of farming systems are practiced, in which the primitive subsistence farming, extensive subsistence farming, and commercial farmings are important. The primitive subsistence farming in sense, the farming, primitive substantive agriculture is practiced on small patches of land by using traditional techniques. This type of farming depends upon the monsoon. These are the farming which takes place throughout the villages where small patches are there of the lands, and this is traditional. हमने जो बात की है वो हमारी एग्रीकल्चर से संबंधित है. 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पर डिपेंड करती है. एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में कृषि के अलावा कृषि से रिलेटेड बाकी जो है कार्य हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री है या फिर ऐसे इंडस्ट्रीज जो कृषि उत्पाद से निर्भर करती है. भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है और इसके साथ साथ समाज और हमारी संस्कृति भी इस कृषि से जुड़ी हुई है. एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स, इससे हमें जो है फूड ग्रेन्स मिलते हैं, हमारे अनाज की व्यवस्था होती है, साथ ही साथ रॉ मटेरियल है जो ये भी हमें प्राप्त हो जाते हैं. चाय, कॉफ़ी या मसाले हैं, इनमें भारत एक्सपोर्ट करता है, विदेशों को भेजता है. और ये जो है
डिपेंड करता है एक तो इन्वायरमेंट पे, वातावरण पे, जलवायु पर, और किस तरह की सॉइल जो है, मृदा वहाँ पर है, उसके अनुसार अलग अलग किस्म की खेती या कृषि हमारे यहाँ की जाती है। एक होती है परंपरागत, दूसरी होती है कॉमर्शियल। अब वर्तमान समय में इंडिया में अलग अलग समय प्रकार की खेती बाड़ी की जाती है, जिसमें विशेष रूप से जो है एक है सब्सटेंस फार्मिंग, दूसरी है वो कॉमर्शियल फार्मिंग। सब्सटेंस इंटेंसिव वो हमारे लिए जो है बेसिक है, जहाँ छोटे छोटे खेतों में पुराने तरीके से ट्रेडिशनल रूप से वहाँ खेती की जाती है, और ये हमारे मानसून पर निर्भर करती है। ओके, नाउ इन द स्लैश एंड बर्न, इन स्लैश एंड बर्न agriculture farmers clear a patch of land by burning vegetation and produce cereals and other foods crops to sustain their family. When the socially fertility decreases, the farmers shift from there to and clear the fresh patch of the land for cultivation. Slash and burn agriculture is known by different names in different regions, such as Jhuming in northeastern India, Bewar or Dahiya in Madhya Pradesh, Podu or Panda in Andhra Pradesh, Pamadabi or Koman or Bringa in Odisha, Kumari in western Ghat, Warle in southeastern Rajasthan, Khin in Himalayan belt, Kurwa in Jharkhand. Slash and burn agriculture is known as the milpa in Mexico, Congo in Venezuela, Roca in Brazil, Ladang in Indonesia and Ray in Vietnam. अब जो हम बात करते हैं परंपरागत रूप से किस तरह से खेती की जाती है, और वो मानसून पर निर्भर करती है, ट्रेडिशनल है। इसमें आग जलाकर जंगल को बर्न कर दिया जाता है, उसके बाद वहाँ खेती की जाती है, और जब तक अच्छी वेजिटेशन मिलती है लोग वहाँ खेती करते हैं। देन दे मूव फॉरवर्ड और फिर से कहीं आग लगाते हैं और जंगल में जो है वो अपनी खेती कर लेते हैं। इस तरह की खेती जहाँ की जाती है उनके अलग अलग नाम हैं और अपने क्षेत्र में अलग नाम से जानी जाती है। झूम खेती और झूमिंग ये हमारे उत्तर और पूर्वी भारत में होता है। नाउ ये खेती हमारे यहाँ तो होती विदेशों में भी होती है। स्लैश एंड फार्मिंग खेती, झूम खेती इसको बोलते हैं। नाउ इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, intensive subsistence farming is a labor intensive farming technique which is practiced in areas of high population pressures on land. ऐसी खेती जो ऐसी जगह पर की जाती है जहाँ पर लोग प्रैक्टिस करते हैं, एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन, ज़्यादा जनसंख्या होती है वहाँ होता है। इन दिस एग्रीकल्चर्स हाई डोजेज ऑफ द बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज। यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा बायोकेमिकल्स खाद वगैरह देते हैं, इरिगेशंस किया जाता है। कॉमर्शियल फार्मिंग, साइंटिफिक मेथड्स एंड टेक्निक्स आर यूज्ड इन कॉमर्शियल फार्मिंग टू ऑब्टेन हाई यील्ड्स। प्लांटेशंस इज टाइप ऑफ द कॉमर्शियल फार्मिंग विच सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरियाज। साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से और मेथड से, तकनीक से ये खेती की जाती है। कॉमर्शियल होती है जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है फसल दे, और ये फसल मार्केट में जाती है, इससे बदले में जो है मार्केटिंग होती है। और ये प्लांटेशन टाइप की हो सकती है, खेतों में जो है विशेष रूप से कॉमर्शियल फार्मिंग में किया जाता है। नाउ क्रॉप पैटर्न्स, किस तरह से खेती की जाती है, कौन कौन सी है। इन इंडिया tea, coffee, rubber, sugarcane, banana, etc. are important plantation crops. Our country has 3
cropping seasons in which can be named as the Rabi, Kharif and Zaid. Rabi crops in India are sown in winter and harvested in spring. Some of the important Rabi crops are wheat, barley, peas, grams, mustard, etc. हमारे यहाँ जो है भारत में 3 तरह की कृषि की जाती है, जिसमें जो प्लांटेशन है उसमें जो है टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर कैन और बनाना आदि आते हैं, और जो सीजन्स है क्रॉप्स की उसमें है रबी, खरीफ और जायद। रबी क्रॉप्स जो है जनरली विंटर सीजन में ली जाती है और इसको स्प्रिंग ऋतु में बोया जाता है और उसके बाद जो है विंटर में इसको जो है हार्वेस्ट कर लेते हैं। ओके, और इसमें मेन है गेहूं, बैरली, पीसेस एंड ग्राम, मस्टर्ड एक्सेट्रा। नाउ खरीफ crops are grown with the arrival of monsoon in different parts of the country. The harvested in September, October. ये बरसात के ऋतु में बोई जाती है और इसका जो है फसल हमें सितंबर अक्टूबर में प्राप्त होती है। नाउ मेजर खरीफ क्रॉप्स ऑफ ग्रोन इन इंडिया आर पैडी, मेजे, जोवर, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, cotton, jute, groundnut and soybeans, etc. In states like Assam, West Bengal, Odisha, 3 crops of the paddy are grown in a year: Osh, Aman and Boro. Some of the crops produced during the Zaid are watermelon, muskmelons, cucumbers, vegetables, sugar canes and fodder crops. ये सब जो है हमारे यहाँ पर 3 ऋतुएं हैं जो बरसात के ऊपर निर्भर करने वाली खरीफ है, और खरीफ के बाद जो है एक ऋतु है वो है जायद, और इस समय जो है हमारे यहाँ वाटरमेलन वगैरह जो है और वेजिटेबल्स वगैरह बोई जाती हैं। नाउ मेजर क्रॉप्स इन इंडिया आर राइस, wheat, millets, pulses, tea, coffee, sugarcane, oilseed, cotton, jute, etc. Rice is the staple food crops of the majority of Indians. India is the second largest producer of rice all over the world after China. Rice is kharif crops which require high temperature and high rainfall. Rice is grown mainly in plains of the northeastern India, coastal areas and deltic regions. हमारे यहाँ पर मुख्य रूप से जो है फसलें आती है, उन फसलों में राइस है, व्हीट है, मिलेट्स है, पल्सेस आदि हैं, और इसमें राइस की ऋतु होती है। ये हमारे यहाँ गर्मी की ऋतु में बोई जाती है क्योंकि इसको हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल की ज़रूरत होती है, और ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स में ज़्यादा होती है, कोस्टल एरियाज में भी होती है और डेल्टा रीजन में भी बोई जाती है। नाउ व्हीट। आफ्टर राइस, wheat is the second most important food crops of India. There are 2 major wheat growing zones in the country: the Ganga-Satluj plains in the northwest and black soils regions of Deccan. ये जो है गेहूं हमारे यहाँ पर सतलज और गंगा का एरिया, हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहाँ होता है, और जो ब्लैक सॉइल्स जो हमारे डेकन्स में है, दक्षिण में है, वहाँ पर होता है। मिलेट्स, जवार, बाजरा, रागीज आर द मेजर millets grown in India. There are also known as the coarse grains. ये मोटा अनाज भी कहलाता है और ये अपने भारत में बोया जाता है, और कई जगह पर इसको फूड ग्रेन्स के रूप में भी लिया जाता है। जवार इज द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया विच रेस्पेक्ट टू एरियाज प्रोडक्शंस। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश आर द लार्जेस्ट producers of jawar. India is the largest producer of the bajra, followed by Uttar Pradesh, Maharashtra, Gujarat and Haryana.
Karnataka is the largest producer of the ragi, followed by Tamil Nadu. Major producing state of the India are Karnataka, Uttar Pradesh, Bihar, and Andhra Pradesh. India is the largest producer as well as consumer of pulses in world. भारत में जो है दालों में उत्पादन में भारत सबसे आगे है और यही पल्सेस हम कंज्यूमर भी हैं. नाउ मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया इज द तुअर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, प्याज एंड ग्राम्स. मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका. दालों का उत्पादन भारत में ज़्यादा होता है दुनिया में और उत्पादन के साथ इसका उपयोग भी हम ज़्यादा करते हैं. और मुख्य दालें जो हमारे यहाँ बोई जाती है वो एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड यूपी, कर्नाटक एक्सेट्रा. नाउ शुगर कैन. शुगर कैन इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स विच ग्रोज well in hot and humidity climate. India is the second largest producer of the sugarcane in the world after Brazil. The major sugarcane producing state in India: Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Bihar, Punjab and Haryana. Sugarcane यानी गन्ना. गन्ने का उत्पादन में भारत सेकेंड लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा ब्राज़ील है. और ये ह्यूमिडिटी इसको ज़्यादा चाहिए और गर्मी भी चाहिए. तो हमारे भारत में जो है मुख्य रूप से ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश आदि जगहों पर उत्पन्न होती है. नाउ ऑयल सीड. ऑयल सीड, मेन ऑयल सीड्स produced in India are groundnut, mustard, coconut, sesamum that is til, soybean, castor seeds, cotton seeds and linseed and sunflower. ऑयल सीड जो है हमारे यहाँ भारत में कई हैं, जिसमें से ग्राउंडनट, मस्टर्ड और कोकोनट, नारियल, सेसमम यानी तिल आदि जो है मुख्य रूप से होता है. नाउ ग्राउंडनट इज अ खरीफ क्रॉप, अकाउंट्स फॉर द अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस्ड इन कंट्री. हमारे यहाँ मूंगफली जो है ग्राउंडनट है और ये मेजर है और आधे से ज़्यादा ऑयल सीड में ये यूज़ किया जाता है. नाउ टी. टी इज़ एन इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स ऑफ इंडिया. मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट आर आसाम हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला. In 2016, India was second largest producer of tea after China. Coffee. Indian coffee is known in the world for its good quality. The Arabica's quality brought from Yemen is now being produced in country. Major coffee producer states in India are Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. India was second largest producer of the fruits, vegetables in world in 2014. Rubber is the important industrial raw material. It is mainly grown in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka and Andaman and Nicobar. हमारे यहाँ पर कॉफ़ी, चाय का मेजर है और विश्व स्तर पर हम इसको निर्यात करते हैं. और कॉफ़ी के लिए भी हमारे यहाँ कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु में ज़्यादा होती हैं. वेजिटेबल और फ्रूट्स में भी भारत का सेकंड स्थान था. और रबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इंडस्ट्रियल मटेरियल है और ये हमारे यहाँ केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और अंडमान निकोबार आइलैंड में इसके पेड़ होते हैं. नाउ फाइबर्स. प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क फाइबर इज ऑल्सो नोन एज सेरिकल्चर्स. सेरिकल्चर्स मीन्स द silk fiber. Now, India is the original place of cotton. India was second largest producer of cotton in the world in 2016. Cotton grown well in the drier part of the black soil of the Deccan plateaus.
Jute is known as the golden fiber. West Bengal, Bihar, Assam, Odisha, and Meghalaya are the major jute producing state in India. जूट और फाइबर के रूप में काम में आने वाली चीज़ें हैं, जिनमें मुख्य रूप से शुगर कैन है और इसमें कॉटन सीड है। ये हमारे दक्षिण भारत में ब्लैक सॉइल्स जहाँ होती है वहाँ होते हैं। और इसके अलावा जूट है, तो जूट वेस्ट बंगाल और बिहार और असम, उड़ीसा आदि क्षेत्र में बोई जाती है और इसको हमारे यहाँ से भारत में काफ़ी इसकी मांग भी होती है। नाउ टेक्नोलॉजिकली एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, कल्टिवेशंस, consolidations of holdings, cooperations and abolitions of zamindari, etc. are given priority to bring out the institutional reform in the country after independence. स्वतंत्रता के बाद कृषि के बारे में विशेष ध्यान दिया गया था। जमींदारी को हटाकर ये कोऑपरेटिव किया गया था और सहयोग के साथ ही आगे बढ़ाया। इसी तरह से जो है होल्डिंग को कंसोलिडेट किया था, कल्टीवेशन को मुख्य रूप में लाया गया था। नाउ द डिक्लेयरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन वाज इनिशिएटेड इन इंडिया टू इम्प्रूव अ लॉट ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर्स। हमारे देश में कुछ कमियां थी, कृषि सही नहीं हो रही थी, तो ग्रीन रेवोल्यूशंस हुए एंड 1965-66 में ग्रीन रेवोल्यूशन ने अपना एक रिवोल्यूशनरी सिस्टम किया था और काफ़ी सुधार किए गए थे। टेक्निकल्स भी यहाँ यूज किया गया था, नई नई व्यवस्थाएं देखी गई थी। नाउ डिक्लेयरिंग शेयर एग्रीकल्चर, डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन GDP इज a matter of serious concern। हमारे GDP में एग्रीकल्चर का भूमिका बहुत ज़्यादा है। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड concrete effort to modernize agriculture, establishment of Indian Counseling of the Agricultural Research, agricultural universities, veterinaries services and animal breeding centers, horticulture development, research and development in the field of the meteorology, weather forecast were given priority to for improving Indian agriculture। भारतीय कृषि व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कई चीज़ें की थी। बेसिक फंडामेंटल्स स्टार्ट किए थे और मॉडर्नाइज ऑफ द एग्रीकल्चर्स के लिए इस्टेब्लिश किए थे। भारत में काउंसिल बनाया था जो रिसर्च करते थे कृषि का। इसी तरह से यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, वेटनरीज़ की यूनिवर्सिटीज सर्विसेज वगैरह बनाई गई थी, एनिमल्स के लिए भी काम किया था और इसी तरह से मेट्रोलॉजी एंड फोरकास्ट के लिए जो वेदर फोरकास्ट करते हैं ऐसी संस्थाएं स्थापित की गई। इससे हमारे यहाँ बहुत परिवर्तन आया था। नाउअडेज द किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल accidental insurance are some other scheme introduced by government for benefit to the farmers। फार्मर्स के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया गया था, उनको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया था ताकि जो है इससे लाभ हो सके। इन ऑर्डर टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी और गवर्नमेंट केयरफुली डिजाइन अ नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम। और इसी तरह से हमारे यहाँ पर गरीब को भी खाना मिले, अमीर के लिए भी हो, मार्केट से भी हो, तो सरकार ने जो है सबका ध्यान रखते हुए व्यवस्थाएं की गई हैं। नाउ इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशंस ऑन एग्रीकल्चर्स, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS in a program which provides for food grains and other essential commodities at subsidized prices in rural and urban areas। हमारे यहाँ पर जो है पब्लिक PDS सहकारी सेवाएं दी गई हैं जिसके मार्फत से लोगों को अनाज की व्यवस्था की गई और भी आवश्यक चीज़ें हैं वो राशन की दुकानों के थ्रू गांवों में भी दिया जाता है और शहरों में भी दिया जाता है। Under globalization, particularly after 1990, the farmers in India have
बीन एक्सपोज टू न्यू चैलेंजेस। और 90 के बाद में भी किसानों को जो है बहुत कुछ चैलेंजेज आए हैं और इसको आगे बढ़ने के लिए सरकार की तरफ से योजनाएं दी गई थी। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज रिकॉग्नाइज एज पावरफुल सप्लीमेंट इन इन्वेंटिंग न्यू हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ द सीड्स। अच्छे बीज के लिए भी जो है इंजीनियरिंग की गई, जेनेटिक इंजीनियरिंग की शुरुआत की गई थी, जैसे जोधपुर में काजरी है और इसी तरह से संस्थाएं बनाई गई थी। इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग्स पैटर्न फ्रॉम फूड ग्रेन्स टू हाई लेवल क्रॉप्स। दिस विल इंक्रीज इनकम एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन साइमल्टेनियसली। भारतीय किसानों को ये व्यवस्था की गई है कि आप अपनी खेती में बदलाव करते रहें ताकि फूड ग्रेन्स भी मिले और उसके लेवल भी हाई हो और चीज़ें अच्छी मिले। नाउ इजराइल, इटली, चिली प्रोड्यूस एक्सपोर्ट हाई लेवल हाई वैल्यू क्रॉप्स एंड इम्पोर्टेंट फूड ग्रेन्स फॉर स्ट्रॉन्ग सक्सेसफुल इकोनॉमीज। इटली में हो, इजराइल में और चिली में इस कृषि पर निर्भर है और उनका जो है इकोनॉमिकली भी वो साउंड है। ये एग्रीकल्चर के बारे में हमने बात की है, किस तरह से एग्रीकल्चर हमारे यहाँ होता है। एग्रीकल्चर मीन्स द साइंस एंड आर्ट ऑफ द कल्टिवेटिंग सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग एनिमल्स। पशुपालन, कृषि से संबंधित बाकी चीज़ें, और इसी को जो है हम एग्रीकल्चर के नाम से जाते हैं कि सॉइल्स के ऊपर हम चीज़ें एग्रीकल्चर्स करते हैं। और इसके साथ साथ कुछ प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग है जो एक जगह से दूसरी जगह पर हम लोग मूव करते रहते हैं, और ये जो है विशेष रूप से हाउस डाउज एंड डिगिंग स्टिक्स फैमिली एंड लेबर कम्युनिटीज़ अपने घर परिवार को चलाने का ही काम करते हैं, उसको सब्सटेंसिव फार्मिंग बोलते हैं। और इसी तरह से जो है ये एक कॉमर्शियल फार्मिंग होती है जिसमें हम अपना उत्पादन करते हैं और मार्केट में देते हैं। सीरियल्स एनी काइंड ऑफ द ग्रेन्स यूज फॉर द फूड, हमारे यहाँ पर फूड के लिए जो काम में लेते हैं ग्रेन्स उसको बोलते हैं सीरियल्स। एंड शिफ्टिंग झूम खेती के नाम से जानी जाती हैं। इसी तरह से इंटेंसिव सब्सटेंशियल फार्मिंग ऐसी है जिसमें एग्रीकल्चर इंप्रूव करने के लिए साइंटिफिक मेथड्स काम में लिए जाता है और इसी प्रकार से बेटर एग्रीकल्चर इनपुट्स होते हैं। नाउ जो भी क्रॉप्स होती है हमारी, उसका एम ये है कि हम मार्केट को बेच दें, वही कमर्शियल फार्मिंग के रूप में जानी जाती है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हमारे हो, इसके लिए कई चीज़ें हम काम में लेते हैं। और यही स्थिति है जैसा कि हमारे यहाँ चाय हम और कॉफ़ी वगैरह विदेशों को बेचते हैं। प्लांटेशन है लार्ज स्केल फार्मिंग ऑफ वन क्रॉप्स resembling in the factory productions. It is usually characterized by large state, huge capitals investment and modern and scientific technique of the cultivation and trade. ये जो है हमारे मुख्य रूप से विदेशों को बेचते हैं या फिर चीज़ें हैं उसको अपवर्ड कर देते हैं, ये चीज़ें होती है। कल्टीवेशन के अलावा अब जो है एग्रीकल्चर के लिए हम सीजन की बात करें तो विशेष रूप से रबी जो सर्दियों में होती है, खरीफ जो रेनी सीजन होती है, और जायद जो हमारे यहाँ पर एक सीजन ऑफ द समर ही है। और इसी तरह से हम देख सकते हैं। फिर अगली बात जो है हम ये जानते हैं कि कुछ ऐसी फसलें हैं जिसके लिए हमें इरिगेशन की ज़रूरत होती है, जहाँ पर वाटर की व्यवस्था की जाए वो इरिगेशन कहलाती है। मिलेट्स इस ज्वार, बाजरा और रागी जिसको मोटा अनाज के नाम से जानते हैं। क्रॉप रोटेशंस जो हमारे यहाँ चलते हैं उसको हम देख सकते हैं कि सीजन के अनुसार और सॉइल के अनुसार, फर्टिलिटी के अनुसार बदलते हैं। ये हमने अब तक बात की थी जिसके अनुसार एक विशेष व्यवस्थाएं की गई थी हमारे यहाँ पर जो है कृषि को अच्छा करने के लिए और कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए। भारत की अधिकांश जनसंख्या इस पर डिपेंड करती है। और देश की आज़ादी के बाद विनोबा भावे जैसे महापुरुषों ने हमारे यहाँ उन गरीब किसानों के लिए अभियान किए थे भूदान का।
भूदान और ग्रामदान movement initiated by Vinoba Bhave is known as the bloodless revolution. Bloodless revolutions. एक चीज और है कि हमारा जो जीडीपी है इसमें भी कृषि का उत्पादन का श्रेय बढ़ना चाहिए, इसीलिए कई एग्रीकल्चर संबंधित यूनिवर्सिटीज बनाई गई थी, रिसर्च सेंटर्स बनाए गए थे जिसे आसानी से चल सकें। और ये जो किसानों की जो उत्पादन है, क्रॉप्स है, इसको खरीदने के लिए राजस्थान सरकार ने, भारत की सरकार ने फूड कॉरपोरेशन बनाए, राशन की दुकानें पीडीएस बनाई, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को फूड ग्रेन्स मिल सके, अपना गुजारा कर सकें। और गवर्नमेंट द्वारा एक सपोर्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस डिक्लेयर की जाती है जो किसानों की सुरक्षा के लिए, कि अगर तुम्हारी क्रॉप्स मार्केट में नहीं जाती तो इस रेट में सरकार उसको एफसीआई के मार्फत खरीद लेगी। और यही किसानों के भले के लिए, किसानों के हित के लिए ये केसीसी और केसीसी के साथ उनका जो है एक उनके लिए जो है व्यवस्थाएं दी गई है। इन व्यवस्थाओं के अंदर जो है इंश्योरेंस भी है, किसान इंश्योरेंस किया गया है। अब कुछ विशेष है, ग्लोबलाइजेशन है, जिसमें जो है हमारी इंडिविजुअल कंट्रीज इज इनटू ग्लोबल इकोनॉमी इज नोन एज द ग्लोबलाइजेशन। ऐसी फसलें हम पैदा करते हैं जो विदेशों को देते हैं। और इसी तरह से जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसमें हम लोग जो है फैक्ट्री मेड केमिकल्स वगैरह यूज नहीं करके कोशिश ये करते हैं कि फार्मिंग विच इज प्रैक्टिस विदाउट फैक्ट्री मेड, वो जो है अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जो नाउ इट इज इंक्रीजिंग। सो दिस वाज द चैप्टर ऑफ द एग्रीकल्चर वी हैव गॉन थ्रू। नाउ यू शुड go through this and do the important question of this chapter. Jai Hind.